بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1945-46 کے انتخابات کے دوران ہی حکومت برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد ہی برصغیر پاک و ہند کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے ایک وزارتی مشن دلی بھیجے گی۔ اس کا باقاعدہ اعلان 20 جولائی 1945 کو لیبر پارٹی کے ٹکٹ سے انتخاب جیتنے والے مسٹر ایٹلی نے 17 فروری 1946 کو کیا۔ اس وقت آپ کے سامنے 1945 میں لیبر پارٹی کے ٹکٹ سے جیتنے والے مسٹر ایٹلی کی ہے۔ اس وزارتی مشن میں سر اسٹیفرڈ کرپس، اس کے علاوہ صدر بورڈ آف ٹریڈ کے علاوہ مسٹر اے وی الیگزینڈر جو کہ برطانوی وزیر بحریہ تھے، اور لارڈ پیتھک لارنس وزیر ہند کے عہدے پر تھے۔ یہ اس مشن میں، جو کہ وزارتی مشن پلان کہلایا بعد میں تاریخ میں، یہ لوگ اس میں شامل تھے۔ اپنے اعلان کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے کہا، ایک بڑا تاریخی جملہ یا ایک بہت سوچ وچار جس نے کہ مسلم لیگ کے حلقوں میں خاص طور پہ ایک تشویش اور سوچ کی فضا پیدا کی۔ اس بات کا تذکرہ چودھری خلیق الزمان نے پاتھ فیٹو پاکستان میں کیا ہے کہ مسٹر اٹلی نے کہا، ہم اقلیتوں کے حقوق سے غافل نہیں ہیں، انہیں ہر طرح کے اور ہر قسم کے خطروں سے آزادی ملنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی اقلیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اکثریت کی آزادی کا راستہ روک لے۔ برطانوی وزیر اعظم مسٹر ایٹلی کے اس بیان کے ساتھ ہی کانگریسی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب یہ سمجھی کہ یقیناً سلطنت برطانیہ مسلم لیگ کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اسی لیے مسٹر جواہر لال نہرو نے اس اعلان کو ایک خوشگوار تبدیلی قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کانگریسی لیڈر سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بے حد خوشی اور مسرت کے اظہار کرتے ہوئے اپنے خلوص کے مظہر، حکومت برطانیہ کے خلوص کا مظہر، اس اعلان کو قرار دیا۔ دوسری جانب قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ برصغیر کے مسلمان اقلیت نہیں بلکہ ایک قوم ہے، اور دوسری بڑی سیاسی طاقت ہے اس خطے کی، اور حق خود ارادیت ان کا پیدائشی حق ہے، اور یہ کہ ہندوستان کے آنے والے وقت میں تمام آنی مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اب ہمارا جو ہے وہ اگلا حصہ شروع ہوتا ہے کہ یہ مشن کب آیا اور اس کی کیا سرگرمیاں رہی اس علاقے میں اپنے آنے کے بعد۔ یہ مشن 24 مارچ 1946 کو دلی میں پہنچا۔ دلی پہنچتے ہی مسٹر لارڈ پیتھک لارنس کو اندازہ ہو گیا کہ مسٹر ایٹلی کے جس فکرے سے کانگریس خوش ہوئی ہے، وہی جملہ وفد کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے بدگمانی کی وجہ بن گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے فوراً دوسرے دن ہی اپنے پریس کانفرنس میں مسلم لیگ کے اطمینان کے لیے کہہ دیا کہ جہاں کانگریس زیادہ بڑی تعداد کی نمائندہ ہے، مسلم لیگ کو بھی یہ سمجھنا صحیح ہوگا کہ وہ محض ایک اقلیت کی سیاسی پارٹی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم مسلم جماعت کی ایک ایسی نمائندہ جماعت ہے جو صاحب اکثریت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسٹر اسٹیفرڈ کرپس نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ حکومت انگلستان کی طرف سے یا یہ وفد اپنے ساتھ کوئی بنا بنایا منصوبہ لایا ہے جو کہ آ کر برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگوں پر تھوپ دیا جائے گا۔
बल्कि काबीना मिशन ने आते ही मुशावरत और मुलाकातों का जिस तरह से सिलसिला शुरू किया, वो इस बात का सबूत था कि इलाके के मसाइल के या खित्ते के मसाइल के हल के लिए मशवरा और मुशावरत की पेश नज़र रखी जानी थी। इस बातचीत में वाइसराय मिस्टर लॉर्ड वेवल भी शामिल रहे, जो कि उस वक़्त बरसगीर पाक हिंद के वाइसराय थे। काबीना मिशन प्लान के वफद ने सबसे पहले वाइसराय की इंतजामी कौंसिल और उसके बाद सूबाई गवर्नरों से मुलाकात की, जबकि सियासी लीडरों में सबसे पहले कांग्रेसी लीडर मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद के साथ उन्होंने मुलाकात की। जबकि गांधी जी ने कांग्रेस के नहीं बल्कि ज़ाती तौर पे एक स्टेटमेंट दी कि मिस्टर जिन्ना का मुतालबा पाकिस्तान मेरी समझ में नहीं आता, ये दो कौमी नज़रिया बिल्कुल गलत और काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। मजहब की तब्दीली से महज कौमियत बदल नहीं जाती। ये बात पाकिस्तान नागुज़ीर था, जो कि सैयद हसन रियाज ने लिखी, वहां से लिया गया है यह हिस्सा। काबीना मिशन प्लान ने कायदे आज़म से पहली बाकायदा मुलाकात 4 अप्रैल को और दूसरी 16 अप्रैल को की। ये वो ज़माना था, ये वो दौर था। मिस्टर एटली की स्टेटमेंट, मिस्टर लॉर्ड वेवल का रवैया, फिर काबीना मिशन प्लान जिस तरह से आके कांग्रेस को अहमियत दे रहा था, तो अगर हम ये कहें कि इस वक्त मुस्लिम लीग की कैफियत 32 दांतों में एक ज़बान की सी थी, यानी हर तरफ से मसाइल, खतरात, अंदेशे और वसवसे जो हैं वो मुसलमानों को और मुस्लिम लीग को घेरे हुए थे। वाइसराय, सूबाई गवर्नर और तमाम अक़लियती जमातें मुतालबा पाकिस्तान की सख्त मुखालिफ थी। हकीकत तो ये है कि इस काबीना मिशन प्लान के अफराद के अगर हम अरकान का झुकाव देखें तो वो भी वाज़े तौर पे हिंदुस्तान की वहदत को कायम रखने के हक में महसूस होता था। लेकिन यहाँ पर आमद के बाद काबीना मिशन प्लान काबीना मिशन के अरकान इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता किए बगैर चारा नहीं है। अपनी 2 मुलाकातों में, जो कि 4 और 16 अप्रैल को हुई 1946 में, कायदे आज़म ने दो टोक अल्फाज में मुतालबा पाकिस्तान वफ़द के सामने पेश किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा इनके लिए 2 अलग रियासतें होनी चाहिए। जिंदगी ही के बारे में देख लीजिए कि मुसलमानों और हिंदुओं का तसव्वुर बहुत मुख्तलिफ है। यानी मुसलमान मौत के बाद की जिंदगी और अल्लाह के आगे जवाबदेही के असूल पर ईमान रखते हैं, जबकि जिंदगी के बारे में हिंदुओं का यह ख्याल है या यह अकीदा है कि हर जो फर्द है या शख्स है उसकी जिंदगी के 7 जन्म होते हैं और ये जन्म मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ तरीके से भी हो सकता है। यानी जो शख्स आज इंसान पैदा हुआ है वो कल को वो किसी और रूप में, किसी और जानवर के रूप में, किसी और शक्ल में भी पैदा हो सकता है। यह फ़लसफ़ा आवागवान कहलाता है। इसी तरह से आपने कहा कि दोनों के रस्म रिवाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दोनों कौमें 1000 साल साथ रही, लेकिन आप किसी भी शहर में जाके देखें हिंदुस्तान के, तो आपको अंदाजा होगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के मोहल्ले अलग अलग हैं। हिंदुस्तान कभी भी एक नहीं रहा और ना ही ऐसा अंग्रेजों के जाने के बाद होगा। इस सारी सूरत हाल में वक्त इस नतीजे पे पहुंचा कि मुसलमानों की जो रायमा है वो हुकूमत खुद इख्तियारी के बगैर या उसके सिवा और कुछ नहीं। यानी मुसलमानों को अलग सियासी वहदत, सियासी कौम या अलग उनको जो है रियासत का हक दिया जाए।
वजारत मिशन का ख्याल था कि हिंदू और मुस्लिम विफाकों के ऊपर एक ऑल इंडिया यूनियन कायम कर दी जाए जिसके पास सिर्फ दिफा, उमूर खारजा और मवासलात के महकमे हों, जिससे मुसलमानों को हिंदू गलबे का खतरा बाकी ना रहे। तो बरसगीर को मुत्तहिद रखते हुए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मकासद को हासिल किया जा सकता है। अपनी इन तजावीज़ पर हम ख्याली के लिए इस वक्त ने दूसरी शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस के दावतनामे 17 अप्रैल को जारी हुए और ये कॉन्फ्रेंस 5 से 12 मई तक जारी रही। मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब मोहम्मद इस्माइल, साहबजादा लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब नेस्तर ने मुसलमानों की और मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की नुमाइंदगी मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। मुज़ाकरात आगाज के साथ ही इख्तिलाफात का शिकार हो गए। वफ्द ने अपनी स्कीम पेश की, जवाब में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने तहरीरी तौर पे अपने अपने नुक्ता नज़र पेश किए। कांग्रेस कुछ और महकमे और टैक्स लगाने का इख्तियार यूनियन के सुपुर्द करना चाहती थी और उसने अपने तजावीज़ में पाकिस्तानी सूबों के इस हक को ना माना कि वो अपना जुदागाना वफाक और दस्तूर सा असम्बली कायम करें। इसके साथ साथ उसे मरकजी हुकूमत में हिंदू मुस्लिम मसावात भी काबिल कबूल नहीं थी। दोनों सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात इतने बुनियादी थे कि किसी किस्म का कोई समझौता ना हुआ और कॉन्फ्रेंस नाकामी का शिकार हो गई। वफ्द का मंसूबा क्या था, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। वफ्द ने 16 मई 1946 को अपनी तरफ से बरसगीर के आइंदा सियासी दस्तूर का खाका पेश किया, जो वजारत मिशन की तजावीज़ के नाम से याद किया जाता है। अपनी इन तजावीज़ में सिफारिशात में वफ्द ने बरसगीर के लिए एक ऐसी किस्म का विफाक तजवीज़ किया जो 3 मंजिला था और इसकी गर्ज़ो गायत बरसगीर की वहदत को कायम रखना था। इस मंसूबे के बुनियादी निकात कुछ इस तरह से थे। कुल बरसगीर एक यूनियन होगी जिसमें तमाम सूबे और देसी रियासतें शामिल होंगे। यूनियन के पास सिर्फ दिफा, उमूर खारजा और मवासलात के महकमे होंगे। नंबर 2, यूनियन की एक इंतजामिया और असम्बली होगी जो सूबों और रियासतों पर मुश्तमिल होगी। इसके आइन में यह शर्त रखी गई कि फिरका वाराना नौयत और दस्तूर में तरमीम जैसे अमूर के बारे में फैसले के लिए पूरे ऐवान की अक्सरियत और इसके हिंदू और मुसलमान अरकान की ताईद और हिमायत इसे हासिल होगी। नंबर 3, यूनियन के लिए मखसूस महकमों के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों के पास होंगे, जबकि देसी रियासतों के पास वो तमाम शोबे और इख्तियारात होंगे जो यूनियन के सुपुर्द नहीं किए जाएंगे। सूबों की इस तरह ग्रुप बंदी की जाएगी कि ग्रुप ए में मद्रास, बम्बई, यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, ये वो इलाके हैं जो हिंदू अक्सरियती इलाके थे, जबकि ग्रुप बी में पंजाब, सरहद, सिंध और बलोचिस्तान। ये बात यहाँ पे मैं वाजे कर दूं कि इस वक्त तक बलोचिस्तान जो है वो बाकायदा सूबा नहीं बना था, जबकि ग्रुप सी में बंगाल और आसाम शामिल होंगे। इन तीनों ग्रुपों की अपनी अपनी अलग इंतजामिया और असम्बली होगी और हर ग्रुप ए बी सी में से वो खुद फैसला करेगा कि कौन से इख्तियारात सूबों के पास रहेंगे और कौन कौन से ग्रुप के पास। नंबर 5, इब्तदा में तमाम सूबे इसी ग्रुप में रहेंगे जिसमें इनको रखा गया है, यानी ए बी सी में, मगर 10 साल के बाद हर सूबे को अपनी असम्बली की अक्सरियत के फैसले के मुताबिक ग्रुप से निकल जाने का इख्तियार हासिल होगा। नंबर 6, दस्तूर से असम्बली के हर फिरके का इंतखाब जुदागाना असूल के मुताबिक होगा और इसमें मुख्तलिफ फिरकों की नुमाइंदगी कुछ इस तरह होगी। ग्रुप ए में मसलन मद्रास के इलाके में गैर मुस्लिम नशिस्तें 45, सिख कोई नहीं, जबकि मुस्लिम नशिस्तें 4। बम्बई में
गैर मुस्लिम नशिस्तें 19, मुस्लिम नशिस्तें 2, यानी कुल तादाद 21। यूपी में गैर मुस्लिम नशिस्तें 47, मुस्लिम नशिस्तें 8, कुल तादाद 55। बिहार में 31 गैर मुस्लिम नशिस्तें, मुस्लिम नशिस्तें 5, यानी 36 टोटल। इसी तरह से ही उड़ीसा में गैर मुस्लिम नशिस्तें 9, मुसलमानों की कोई नशिस्त नहीं और टोटल नशिस्तों की तादाद हो गई 9। सीपी में गैर मुस्लिम नशिस्तें 16, मुस्लिम नशिस्तें 1 और कुल तादाद 17। देखा जाए तो गैर मुस्लिम नशिस्तों की तादाद बनी 167, जिसमें मुस्लिम नशिस्तें 20 और टोटल तादाद बनती है ये 187। अब आ जाते हैं, ये वो ग्रुप ए को हिंदू मुस्लिम अक्सरियतों के तौर पे अपने जहन में रखिएगा। अक्सरियती इलाकों पर मबनी ये इलाके थे। अब आ जाते हैं हम ग्रुप बी पे, जो कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलोचिस्तान पे मबनी था। इसमें गैर मुस्लिम नशिस्तें 8, सिखों की 4, मुस्लिम नशिस्तें 16, टोटल तादाद 28। सरहद में गैर मुस्लिम नशिस्तें 0, सिखों की तादाद 0 और मुस्लिम नशिस्तें 3। सिंध में गैर मुस्लिम नशिस्त 1, सिखों की कोई नहीं, मुस्लिम नशिस्तें 3 और टोटल या मुकम्मल हुई है तादाद इनकी 4, यानी कुल तादाद गैर मुस्लिम नशिस्तों की 9, सिखों की 4, मुस्लिम नशिस्तें 22 और मुकम्मल टोटल तादाद है ये 35। अब आ जाते हैं ग्रुप सी की तरफ। यह भी मुस्लिम अक्सरियती ग्रुप है, या मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पे मबनी ये ग्रुप है। नंबर 1 बंगाल, गैर मुस्लिम नशिस्तें 27, सिखों की कोई नहीं, मुस्लिम नशिस्तें 33, टोटल तादाद हुई 60। आसाम में गैर मुस्लिम नशिस्तें 7, सिखों की कोई नहीं, मुसलमानों की 3 और टोटल तादाद या हुई 10। कुल तादाद हुई यहाँ पर 34 गैर मुस्लिम नशिस्तों की, मुसलमानों की 36 और इन दोनों को मिलाकर बना 70। इस निजाम की जान ग्रुपिंग सिस्टम था। दस्तूर से इस प्लान में कहा गया कि दस्तूर से असेंबली एक होगी और इब्तदाई कार्रवाई के बाद वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। पहले हर ग्रुप अपना और अपने सूबे का दस्तूर, और बाद में सब मिलकर यूनियन का दस्तूर तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इस निज़ाम की जान ग्रुपिंग सिस्टम था, इसीलिए मिस्टर स्टीफर्ड क्रिप्स ने 17 मई को कहा, वजाहत करते हुए कि इब्तदाई 10-10 पर्सनों को अपने अपने ग्रुप में ही रहना होगा जिसमें कि इनको शामिल किया गया है। और ये भी कहा गया, इस बात का इजहार 25 मई को दोबारा मिशन ने दोहराया कि सूबों की ग्रुप बंदी मंसूबे का लाजमी हिस्सा है। ताहम दोनों फरीकों की बाहमी रजामंदी से इसमें तरमीम की जा सकती है। और एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराया गया कि यह हुकूमत बरतानिया का फैसला नहीं है, बल्कि महज सिफारिशात या तजावीज़ हैं। इसके अलावा वजारती मिशन के अरकान ने तजवीज़ किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कुछ अक़लियती नुमाइंदे मिलकर फौरी तौर पर अबूरी मरकजी हुकूमत तश्कील दे लें। इसके तमाम शोबे हिंदुस्तानी लीडरों के पास होंगे और हुकूमत को आज़ादी के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही ये वाज़ेह किया गया कि इन तजावीज़ के दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ मरबूत हैं, इनको मजबूरी तौर पर कबूल करना होगा या मुस्तरद करना होगा। और जो पार्टी इस स्कीम को, यानी जो वजारती मिशन ने तरतीब दी, इसे कबूल करेगी, इसे हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा। मगर वक्त ने साबित किया कि ये धमकी सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए थी। और इस बात का इजहार लंदन के अखबार इकोनॉमिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से किया कि अंग्रेजों की पॉलिसी ये है कि अगर कांग्रेस बात नहीं मानती तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मुस्लिम लीग इनकार कर दे तो इक़्तिदार कांग्रेस के हवाले कर दिया जाएगा। काबीना मिशन मिलान पे रद्द अमल। काबीना मिशन प्लान ने अपने तजावीज़ के दिबाचे में मुतालबा पाकिस्तान का जायजा लिया था और इसको नाकाबिले अमल करार दिया था।
कांग्रेसी हलकों में इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि बरसगीर की तकसीम और मुतालबा पाकिस्तान मुस्तरद किया गया है। गांधी जी ने इस मंसूबे के बारे में कहा कि वफ्द का मंसूबा सालसी फैसला नहीं, महज एक तजवीज़ है। दस्तूर साज असम्बली खुद मुख्तार इदारा होगी। इस बारे में कोई पाबंदी नहीं कि वो इन तजावीज़ को तब्दील कर दे या मुस्तरद कर दे। 24 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की करारदाद में कहा गया कि प्लान के मायने ये हैं कि सूबों को शुरू ही से आज़ादी हासिल हो, वो जिस ग्रुप में चाहें शामिल हो जाएं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने बयान में इस बात पर सख्त जोर का इजहार किया कि वफ़द ने महज हिंदुओं और कांग्रेस को खुश करने के लिए पाकिस्तान का मुतालबा मंजूर नहीं किया, और ये कि 2 की जगह एक दस्तूर साज़ असम्बली की तजवीज़ पेश की गई है। काबीना मिशन प्लान की मंजूरी। 4 जून को वाइसराय मिस्टर लॉर्ड वेवल ने कायदे आज़म को यकीन दहानी कराई कि मैं हतमी तौर पर आपको बता दूं कि अगर काबीना मशवरे से 16 मई के मंसूबे को एक फरीक ने कबूल किया और दूसरे ने मुस्तरद किया तो फिर क्या होगा। मैं ज़ाती तौर पर और काबीना की तरफ से आपको मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ कि दोनों फरीकों के साथ सलूक में हम कोई इम्तियाज रवा नहीं रखेंगे। इस पर मुस्लिम लीग ने 6 जून को मंसूबे के दोनों हिस्सों को कबूल कर लिया। मुस्लिम लीग की कौंसिल ने इस बात से इत्तफाक किया कि 6 मुसलमान सूबों की लाजमी ग्रुपिंग से मिशन के मंसूबे में पाकिस्तान की बुनियाद बनाते हुए वो इस उम्मीद पर मंसूबे को कबूल करते हैं कि आखिरकार आज़ाद और मुख्तार पाकिस्तान बन जाएगा। मुस्लिम लीग ने काबीना मिशन प्लान को मंजूर करके इस हकीकत पसंदी का भी मुजाहिर किया और साबित किया कि कायदे आज़म एक जिद्दी और हट धर्म शख्स नहीं है, बल्कि वो एक तरोताज़ा, मुतहरिक और लचकदार जहन रखने वाले सियासतदान हैं और अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता किए बगैर भी पेशकदमी कर सकते हैं। वजारत मिशन 29 जून को वापस इंग्लिस्तान चला गया। इसके जाने के फौरन बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के इजलास में कहा कि इस मंसूबे ने हिंदुस्तान की तकसीम के सारे अंदाज़े दूर कर दिए और ये बात वाज़ेह हो गई कि वो एक नाकाबिले तकसीम वहदत रहेगा, यानी हिंदुस्तान। नेहरू का बयान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की सदारत मिस्टर जवाहरलाल नेहरू को 7 जुलाई को मिली। खैर सगाली की इस फिजा को मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इस तरह से खराब किया कि उन्होंने 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस दस्तूर साज असम्बली में किसी साबिका समझौते की पाबंदी नहीं करेगी और अपनी सवाबदीद के मुताबिक वजारती मिशन के मंसूबे में रद्द-बदल करने में आज़ाद होगी। और साथ ही इसने कहा कि दस्तूर साज असम्बली में शिरकत वो इसी रजामंदी पर शामिल होगी, शिरकत करेगी। यानी जवाहरलाल नेहरू की इस बयान पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, मुझे ये बात कह देनी चाहिए कि नेहरू का बयान गलत था। 1937 में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती की वो बहुत बड़ी थी, लेकिन यानी 1937 में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती की वो बहुत बड़ी थी, लेकिन 1946 की गलती 1937 में की गई गलती से भी ज्यादा मुहलक साबित हुई। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बयान पे कायदे आज़म ने कहा कि ये बयान ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की हकीकी सोच की तर्जुमानी करता है, सिर्फ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू की जज्बात और ख्यालात की तर्जुमानी नहीं करता है। लेकिन साथ ही साथ हकीकत तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये बयान देकर वो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के टुकड़े हवा में उड़ा दिए।
حالانکہ اس قائد اعظم ضروری تحفظات کے ساتھ اس بات پر رضامند ہو چکے تھے۔ عبوری حکومت کی تشکیل، اب یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا اگلا پوائنٹ، انگریز سرکار کی وعدہ خلافی۔ عبوری حکومت کی تشکیل وزارتی منصوبے کا لازمی حصہ تھی۔ چند دن بعد وائس رائے نے کہا کہ مسلم لیگ اور کانگریس عبوری حکومت میں اپنی نمائندگی پیش کرے، اس کے علاوہ اور ایک سکھ اور ایک اچھوت ممبر بھی اس عبوری حکومت میں شامل ہوگا۔ اس اضافے کا مطلب یا پس منظر تھرڈ ایئر اس بات کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ کانگریس کی قوت میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے ہر اختلافی سوال پر تمام غیر مسلم اقلیتی سیاسی جماعتیں کانگریس کا ساتھ دیتی تھی اور دیتی چلی آئی تھی۔ یعنی اس ایک سکھ اور ایک اچھوت ممبر کا اضافی فیصلہ کانگریس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اور ایک دفعہ پھر 16 جون کو 14 افراد کے ناموں کے اعلان کے ساتھ یہ بات زور دے کے کہی گئی کہ اگر دونوں بڑی پارٹیوں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار کیا تو تعاون کرنے والی پارٹیوں پر مشتمل حکومت قائم کر دی جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 25 جون کو کانگریس نے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کیا، جبکہ اس سے پہلے مسلم لیگ اپنی شمولیت کی رضامندی دے چکی تھی۔ لیکن انگریز سرکار نے ایک سیاسی خلا بازی کھائی اور 26 جون کو وزارتی مشن نے اعلان کیا کہ یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا ہے اور وائس رائے نے مستقل سرکاری ملازمتوں پر مشتمل ایک نگران حکومت قائم کر دی ہے۔ قائد اعظم نے وائس رائے لارڈ ویور کو خط لکھا جس میں انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس وعدہ خلافی اور بدترین بدعہدی کے باوجود مسلم لیگ نے دستور ساز اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا جو کہ جولائی کے آغاز میں ہوئے۔ ان میں کامیابی مسلم لیگ نے حاصل کی جس نے قائد اعظم کا حوصلہ بڑھایا۔ مسلم لیگ کے کل 79 یعنی 79 مسلمان سیٹوں میں سے 76 امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ غیر مسلموں اور کانگریس کو 213 سیٹیں ملی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس غالب اکثریت کی بنا پر 10 جولائی کو گروپ بندی کی پابندی سے انکار کیا تھا تاکہ مسلمان گروپ بندی کے فوائد سے محروم رہ گئے۔ کابینہ مشن تجاویز مسترد۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس 28 جولائی کو بمبئی میں ہوا۔ قائد اعظم نے کہا ہم سب کچھ آزما چکے ہیں، ہمیں کسی دوسری امداد کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی عدالت بھی نہیں کہ جہاں ہم جا سکیں، ہماری واحد عدالت مسلمان قوم ہے۔ اسی کونسل کے دوسرے دن کے اجلاس میں قائد اعظم نے تقریر کرتے ہوئے کہا مسلم لیگ رعایت پہ رعایت دیتی رہی اور مذاکرات کے دوران انصاف اور مصالحت کے جذبے سے سرچار رہی، یہاں تک کہ سارے ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کی خاطر اس نے آزاد خود مختار پاکستان کو بھی کانگریس کی قربان گاہ کی بھین چڑھا دیا۔ مسلم لیگ نے رضاکارانہ طور پر متحدہ ہندوستان کو تسلیم کیا۔ کابینہ مشن پلان میں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ قدم اٹھا کر کوئی غلطی نہیں کی بلکہ اعلیٰ درجے کی سیاست اور تدبر کا اظہار کیا، ثبوت دیا، لیکن ہمارے اس اقدام کو گستاخی اور نفرت کا نشانہ بنایا گیا، لہٰذا اب سمجھوتے کی گنجائش نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس اجلاس میں 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1، کابینہ مشن پلان کی تجاویز کا فیصلہ واپس لیا اور دوسرا مطالبہ پاکستان کے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے لائن آف ڈائریکشن یا ڈائریکشن ایکشن کی مسلم لیگ کی طرف سے مکمل طور پہ منظوری دی گئی اور اس کے لیے 16 اگست کا دن مقرر ہوا تاکہ مسلمان عوام کو بتایا جا سکے کہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पुरअमन और दस्तूरी जदोजहद के हमेशा कायल थे, मगर उन्होंने इस मौके पे फरमाया कि आज हमने डायरेक्ट एक्शन का पिस्तौल मजबूरन ताना है। उन्होंने अपील की कि एहतजाज के तौर पे तमाम मुसलमान या मुस्लिम लीग के अरकान सरकारी खिताबात वापस कर दिए। यही वजह है कि कायदे आज़म की तकरीर के बाद बड़े बड़े मुसलमान लीडर स्टेज पर आए और उन्होंने बहुत ड्रामाई अंदाज में अपने वो तमाम खिताबात वापस किए जो कि उनको बरतानवी हुकूमत ने दिए थे। वजारती मिशन प्लान को क्यों मुस्तरद किया गया? अगर देखा जाए तो वजारती मिशन की तजावीज़ का मतलब ये था कि 10 साल के बाद आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के बनने के इम्कानात हैं, यानी वही 6 मुस्लिम सूबे जिनका मुस्लिम लीग मुतालबा करती रही थी पाकिस्तान का हिस्सा होते, लेकिन पंजाब और बंगाल की तकसीम ना होती। इस बात का इजहार मुस्लिम लीग ने मंसूबा मंजूर करते हुए भी कही थी, मगर इस मंसूबे की जान और रूह ग्रुपिंग सिस्टम था। इन्हीं हालात में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 10 जुलाई को ऐलान किया कि दस्तूर असम्बली में शिरकत के अलावा हमने कोई शर्त नहीं मानी। सूबों की ग्रुपिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बयान ने कांग्रेस के चेहरे का नकाब उलट दिया और इसका कट्टर हिंदू चेहरा खुलकर सामने आ गया। दस्तूर असम्बली की 229 माजरत 229 नहीं बल्कि 292 नशिस्तों में से मुस्लिम अरकान की तादाद 79 यानी 79 थी, जबकि देसी रियासतों को 93 नशिस्तें दी गई थी यानी 93। चूंकि हिंदू रियासतों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए इस तरफ से भी ज्यादा अरकान हिंदू ही होते। इस गालिब हिंदू अक्सरियत के सामने मुसलमान बेबस हो जाते और इनका आज वही हाल होता जो इस वक्त जिसमें आजकल के हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान मुब्तला हैं। अबूरी हुकूमत की तश्कील के बारे में वायसराय वजारती मिशन हुकूमत बरतानिया ने जिस बात अहदी और धांधली का मुजाहरा किया, उससे यह बात वाज़ेह हो गई कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बरतानवी हुकूमत की आशीर्वाद पर इस तर्ज फिक्र की, तर्ज अमल की जो है वो हामिल है, या उसकी इन तमाम खा वो वायसराय हो या हुकूमत इंग्लिस्तान हो, कांग्रेस की हथधर्मी के पीछे बरतानिया की आशीर्वाद शामिल थी। मुस्लिम लीग को ग्रुपिंग प्लान इसलिए भी काबिल कबूल थी, जिसकी बिना पर कायदे आज़म ने जो है इस मंसूबे इस मिशन की इन तजावीज़ को कबूल किया, क्योंकि इसमें पंजाब और बंगाल में मुस्लिम अक्सरियत के वजूद को तस्लीम किया गया था। लिहाजा एक दफ़ा फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के झंडे तले मुसलमान वाज़े तौर पर मुतालबा पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने लगे। इसके साथ ही हमारा आज का जो मौजू है वो इख्तिताम पजीर होता है। आपने सिर्फ ये जो 3 ग्रुप बनाए थे कैबिनेट मिशन ने, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये 3 सिर्फ डायग्राम्स बनानी है। लारैब आप ध्यान से बेटा सुन लें, मैं कोई लंबा आप ध्यान से सुन लें, उसके बाद किताब से पढ़ लें, ये बहुत काफ़ी होगा आपके लिए। हाँ, काम करना जो है वो इस बात का सिर्फ एक थोड़ा सा इजहार होता है या सबूत है कि आप जो है वो क्लास में मुकम्मल तौर पे शामिल हैं। लिहाजा मैं दोबारा दोहराऊंगी कि आज का काम वजारती मिशन प्लान में जो ग्रुपिंग की गई, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी बनाया गया, आपने सिर्फ ये 3 जो डायग्राम हैं या जो 3 तफसील हैं ग्रुपों की, वही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना आज के काम में। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह ताला कल जो है अबूरी हुकूमत और साथ ही साथ किस तरह से
ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ڈائریکشن ہے مسلم لیگ کی، وہ قیام پاکستان کی طرف اب تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا جو ہے ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔